નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, લોકમંચમાં આપનું સ્વાગત છે। લોકમંચમાં ચર્ચા કરી રહ્યા છે બિહાર વિધાનસભાની ચૂંટણીનું મતદાન પૂર્ણ થઈ ચૂક્યું છે। 3 તબક્કાનું આ મતદાન હતું અને હવે એક્ઝિટ પોલ સામે આવી રહ્યા છે। ત્યારે એક્ઝિટ પોલ પર ચર્ચા કરવામાં આવી રહી છે કે બિહારમાં કોની સરકાર બનશે, કયા સમીકરણો ગોઠવાશે તેની ચર્ચા છે। એક નજર પહેલાં કરી લઈએ એક્ઝિટ પોલ પર, જે આપણે સ્ક્રીન પર જોવા મળી રહ્યા છે। એબીપી છે, ટાઈમ્સ નાઉ, TV9, દિવ્ય ભાસ્કરના એક્ઝિટ પોલ છે, જેમાં એનડીએ છે એમ મહાગઠબંધન, એલજેપી અને અન્યના બેઠકો આપવામાં આવી રહી છે। એબીપી મુજબ 104 થી 128 છે, એનડીએ 108 થી 131, એમજીબી એલજેપીને 1 થી 3 ની વચ્ચે, અન્યને 4 થી 8। ટાઈમ્સ નાઉ 116 થી 120ની આસપાસ જે કહી રહ્યા છે, 116 અને 120 એમજીબી, તો બહુ મોટું માર્જિન ત્યાં જોવા નથી મળી રહ્યું। TV9 છે 110 થી 120, એનડીએ કહે છે તો 115 થી 125 છે, એ એમજીબી એટલે કે મહાગઠબંધન છે, અને બિહારમાં અન્યને એલજેપી જે છે તેને 3 થી 5। આ બધાથી વિપરીત જોવા મળી રહ્યો છે દિવ્ય ભાસ્કરનો સર્વે, જેમાં 120 થી 127 બેઠકો એનડીએ માટે આપી રહ્યું છે દિવ્ય ભાસ્કર, તો મહાગઠબંધનને 71 થી 81 બેઠકો આપી રહ્યું છે, અને એલજેપીને 12 થી લઈને 23 સુધીનો આંકડો આપવામાં આવ્યો છે દિવ્ય ભાસ્કરના જોવા જઈએ તો આંકડા, અને એમાં અન્ય છે એમાં 19 થી 27 જોવા મળી રહ્યા છે। આ આંકડા આપણને જોવા મળી રહ્યા છે। ચર્ચા કરી રહ્યા છે લોકમંચમાં બિહારની વિધાનસભાની આ ચૂંટણીને લઈને અને એક્ઝિટ પોલને લઈને। પણ મારી સાથે ચર્ચામાં જોડાયા છે પટનાથી કે જેઓ પત્રકાર છે શૈલેન્દ્ર સિંહ, જીટીપીએલના પત્રકાર છે ચૈતન્ય જૈન, અને વરિષ્ઠ पत्रकार છે भार्गव परीख। आप ત્રણેયનું સ્વાગત है चर्चा में। शैलेंद्र जी, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो सबसे पहला आपका रिएक्शन क्या है ये एग्जिट पोल पे, बिहार के जो एग्जिट पोल आ रहे हैं? जी बिल्कुल, बिहार का जो एग्जिट पोल आ रहा है और जिस तरीके से राजनीतिक समीकरण बदला है, और 2000 पीछे अगर चल जाए 2015 और 2020 के चुनाव में बिहार में काफी अंतर है। काफी दोस्त जो है विरोधी हो चुके हैं, कई विरोधी जो है दोस्त हो चुके हैं। रही बात अभी जो आंकड़ा आ रहा है, जो जिस तरीके से जो बहुत करीबी मामला है, टक्कर बहुत ही जो है ज्यादा है, किसकी सरकार बनेगी कहना मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार की वर्तमान नीतीश सरकार की जनाधार जो है घटती नजर आ रही है। और इसके साथ आपको बता दें कि जो चुनाव नीतीश कुमार पहले महागठबंधन के साथ लड़े थे और अब में बहुत वोटरों के टेम्परामेंट में भी जो है बहुत अंतर आया है, और यही वजह है कि यहाँ पे नीतीश कुमार को जो है नुकसान दिख रहा है, जदयू को, एनडीए को नुकसान दिख रहा है। उसके साथ ही एक फैक्टर और है कि एलजेपी का चिराग पासवान का अलग होकर और नीतीश कुमार खासकर जदयू कैंडिडेट के खिलाफ अपना कैंडिडेट को खड़ा करके वहां पे कहीं ना कहीं वोट काटा गया है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो रहा है बिहार की राजनीति में, और 10 तारीख को जो नतीजे आएंगे वो बहुत ही चौंकाने वाले होंगे। एग्जिट पोल तो अपनी जगह पर है, आ रहा है, लेकिन नतीजे बहुत चौंकाने वाले होंगे। जी, तो वो चौंकाने वाले नतीजे जो है वो आपको क्या लग रहा है कि आपके मुताबिक क्या नतीजा हो सकता है? देखिए, नतीजा ये हो सकता है कि जिस तरीके से सीटों का आदान प्रदान है, जिस तरीके का जो आंकड़ा है बहुत करीब का है, बहुत करीब का टक्कर है, आप समझ सकते हैं कि महज 10-20 सीटों के अंतर पर जो है ये मामला होगा, और इसमें कई राजनीतिक जो विरोधी हैं वो दोस्त होंगे, और कई जो है दोस्त जो है वह विरोधी हो जाएंगे। तो बहुत बड़ा दिलचस्प होगा। आपको बता दें 2020 बिहार विधानसभा का चुनाव, उसका नतीजा और सरकार का गठन, ये देखने में बहुत दिलचस्प होगा। राजनीति तो दिलचस्प होता ही है, लेकिन बिहार की राजनीति इस बार बहुत ही दिलचस्प है। जी, ओके भार्गव भाई, आपનું અનુમાન એક્ઝિટ પોલ પર અત્યારે હજી 2 એક્ઝિટ પોલ બાકી છે, પણ તેમ છતાં અત્યારે જે લિસ્ટમાં સ્ક્રીન પર અમે બતાવ્યા એમાં દિવ્ય ભાસ્કરનો થોડોક અલગ આંકડો જોવા મળી રહ્યો છે। આપનું આંકલન શું છે બિહાર ચૂંટણી માટે? જો જે રીતે એક્ઝિટ પોલ ને જોઈ રહ્યા છીએ આપણે, અને તેજસ્વી યાદવ જે છેલ્લા 1 મહિનામાં જે રીતે ઉભરીને બહાર આવ્યા છે, એ જોતા એવું દેખાઈ રહ્યું છે કે એક્ઝિટ પોલની અંદર નીતિશ યાદવને ખરી ટક્કર નીતિશ કુમારને ખરી ટક્કર તેજસ્વી યાદવ આપી રહ્યા છે। એમએન સિન્હા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સોશિયલ સ્ટડીઝ જે બિહારનું છે, મને લાગે છે કે કદાચ આપણા બંને, ભદ્રેશ વાંધો ના હોય તો આપણા બંને જે સાથી છે એ બંને હિન્દી ભાષી છે, કદાચ ગુજરાતી નહીં સમજતા હોય તો હિન્દીમાં હું વાત કરું તો જો એ લોકો પણ એમાં સમર્થિત થઈ શકે અથવા તો બધા ઇનપુટ આપી શકે। बिल्कुल बिल्कुल, यस। मुझे लगता है कि शायद आप गुजराती नहीं जानते, तो मैं हिंदी में अगर बात करूं तो आप उसमें कुछ ज्यादा इनपुट दे पाएंगे। मैं गुजरात से जो अपना इनपुट दे रहा हूं तो उसमें वो आप ही की जो वहां बिहार की, हाँ, बिहार की एमएन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज का मेरे पास रिपोर्ट जो आया है, उस रिपोर्ट के अंदर ये दिखाया जा रहा है कि 1 महीने के अंदर तेजस्वी यादव ने अपना पूरी ताकत झोंक दी, और उस
के चलते तेजस्वी यादव ने अपना पूरा रणनीति चेंज किया है। और उस रणनीति के तहत उन्होंने बिहार के अंदर जो उनको कारगर जो मुद्दा रहा, वो एक तो रहा जो लॉकडाउन के दौरान जो वहां के जो मजदूर थे उनको हुई हालाकी जो थी, उसके चलते उन्होंने रोजी रोटी को एक मुद्दा बनाया और सरकारी नौकरी एक दूसरा मुद्दा बनाया, जो दो मुद्दे बहुत ही प्रभावी रहे और नीतीश कुमार के सामने उनको खड़े होने की एक अलग से एक प्रभावी जगह मिली, जो ये बता रहा है, ये सोशल स्टडीज के रिपोर्ट के मुताबिक बता रहा है। और दूसरा एक मुद्दा जो काफी प्रभावी रहा है वो ये रहा कि ये मुद्दे जब प्रभावी बने तो उसके बाद एक इमोशनल गेम खेला गया। इमोशनल गेम ये नीतीश कुमार के द्वारा ये खेला गया है कि ये मेरा आखिरी इलेक्शन है, इसके बाद मैं इलेक्शन नहीं खेलने वाला हूं, तो ये एक इमोशन के साथ खेलने की कोशिश की गई। और दूसरा इमोशनल ये जंगल राज वाला जो मुद्दा है, तो पिछले एक महीने के अंदर जिस तरह से टर्नआउट आ रहा है, तो ये जंगल राज वाले दो इमोशनल मुद्दे को लेके अब एनडीए बाहर आई है। तो यही बता रहा है कि एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं वो एग्जिट पोल नजदीक जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके भार्गव भाई, लेकिन आपको ऐसी कोई स्ट्रेटेजी खास देखने को मिली? जैसे जेडीयू ने बोला जंगल राज के सामने हमारा राज, और दूसरा बीजेपी का भी यही फंडा रहा है कि बहुत पुरानी पार्टी कांग्रेस पूरे देश में चल रही थी, उन्होंने कुछ नहीं किया, हम कर रहे। तो ये एक एजेंडा लग रहा है आपको? क्योंकि इस हिसाब से अगर स्ट्रेटेजी बनी है तो तेजस्वी यादव या महागठबंधन की जो स्ट्रेटेजी है वो ज्यादा हावी हो रही है। देखिए, तेजस्वी की स्ट्रेटेजी थोड़ी हावी हो रही है। आप पिछले कई चुनाव से देखें तो कांग्रेस कहीं पे भी इतनी प्रभावी बिहार के अंदर कभी भी रही नहीं है, पिछले कई सालों से। मतलब पिछले कई सालों से अगर लालू के समय से भी देखा जाए तो कांग्रेस इतनी प्रभावी वहां पे रही नहीं है। तो अगर यहाँ पे ये मुद्दा लेके बीजेपी और या तो एनडीए आती है कि कांग्रेस ने ये नहीं किया वो नहीं किया, तो उनके लिए इतना प्रभावी नहीं रहेगा, कारगर भी नहीं रहेगा। नीतीश कुमार के बारे में अगर कहा जाए तो उसको लालू को सक्सेसर के तौर पे अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार को अगर आप देखें लालू के सक्सेसर के तौर पे, तो ये चीज भी काफी हद तक प्रभावी रही है। 2015 की अगर बात की जाए तो 2015 के अंदर जब सरकार बनी थी तब शुरू के अंदर लालू के साथ हाथ मिलाया गया था नीतीश कुमार के द्वारा, और फिर से बीजेपी के साथ हाथ मिलाया गया। तो ये भी एक चीज है जो बिहार के वोटर को काफी अखर रही है, जो अगर तो ये चीज भी कहीं बुनाने की कोशिश तेजस्वी के द्वारा की गई है। अगर तेजस्वी को देखा जाए तो उसकी शार्पनेस इसलिए बढ़ी है कि अगर 2015 के अंदर तेजस्वी का परफॉर्मेंस जो मैंने 2015 के बाद 2019 के अंदर उनका जो परफॉर्मेंस मैंने देखा है, तो 2019 का परफॉर्मेंस काफी कुछ हद तक अच्छा रहा था और काफी अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने 19 में किया था। 19 का जो उनका एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई का यहाँ पे पूरा उपयोग किया है। जैसे पहले पिछले चुनावों के अंदर बिहार को जहां तक मैंने बिहार का भी एक बार बहुत पहले रिपोर्टिंग किया हुआ है, तो बिहार के अंदर ये मुद्दे प्रभावी कभी नहीं रहे थे कि जितना कांग्रेस का मुद्दा प्रभावी रहा था, वो बिहार के अंदर कभी प्रभावी नहीं रहा। बिल्कुल। हालांकि इस बार रोजी रोटी एक बड़ा मुद्दा बना है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान 80 के सैकड़ों बीमारू स्टेट के हिसाब से वो 4 स्टेट थे, और उसी को चलते हुए बीमारू में मतलब बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, जहां से सबसे ज्यादा लेबर के तौर पे लोग माइग्रेट होके बाहर निकलते थे। तो उसी के चलते सेफोलॉजी में ये नया वर्ड आया था, बीमारू राज्य। हाँ, यस, बिल्कुल। और यही लोग जो है वो काफी हद तक उन्हीं बीमारू राज्य के जो लोग हैं, जो उनको काफी तकलीफें हुई है, और वो एक प्रभावी वोटर है उनका। तो यहाँ इन वोटर का जो प्रभाव है बन गया है। पिछले 15 साल का हिसाब किताब भी गिनाया जा रहा है, क्योंकि मुझे याद है कि एक जमाने में एक स्लोगन भी चलता था जब बिहार के अंदर, जब तक समोसे में रहेगा आलू तब तक का रहेगा लालू। ये एक स्लोगन भी काफी हद तक चला था, लेकिन उसको कट डाउन करते हुए नीतीश आए, तो नीतीश को इतना प्रभावी इस बार 20 के अंदर नहीं देखा जा रहा। जी चैतन्य जी, एक तो आपसे मेरा सीधा सवाल ये रहेगा कि दूसरे अभी जो कोरोना काल चल रहा है उसमें पहला ये विधानसभा का इलेक्शन हम देख रहे हैं बिहार का,
तो इस सिचुएशन के अंदर दूसरे राज्यों के मुताबिक देखने जाए तो उनके हिसाब से और ये बिहार का इलेक्शन किस तरह से अलग आपको देखने को मिल रहा है? और दूसरा सवाल ये भी रहेगा, आपके हिसाब से कौन से इक्वेशन यहाँ पे ज्यादा काम कर रहे हैं बिहार के इलेक्शन में? मुद्दे बोलो या जी इक्वेशन? जी, भद्रेश जी हमारे साथ शैलेंद्र जी हैं बिहार से। वो बिहार की राजनीति में लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। भार्गव भाई हैं जो काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं। दोनों ने अपना मंतव्य बिहार के एग्जिट पोल और वहां की चुनावी मुद्दों के संदर्भ में रखा है। आपका क्वेश्चन बहुत सटीक है कि कोरोना के समय में, कोरोना के बाद एक पहला फुल फ्रेश इलेक्शन है जो किसी राज्य का हो रहा है, और उसमें भी बिहार राज्य है। कोरोना में अगर हम पूरे कोरोना काल को देखें तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुए हैं वो प्रवासी मजदूर हुए हैं पूरे कोरोना पीरियड में। जो स्टार्टिंग के 3 महीने थे वो काफी पैनिक थे उन लोगों के लिए जब लॉकडाउन था, लॉकडाउन पीरियड में। और बिहार के करीब 80% मजदूर पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो मजदूर हैं उनमें से सब जाते हैं, सब जगह बिहार के मजदूर हैं। ऑल ओवर इंडिया के हर स्टेट में लगभग बिहार के मजदूर वापस लौटे हैं। तो उस समय जब जो चुनाव उभर कर आया है सामने, तेजस्वी यादव ने, मुझे लगता है तेजस्वी यादव बिहार की हवा को भांपने में तेज निकले काफी, जैसा उनका नाम है। और शायद नीतीश कुमार यहाँ चूक गए एग्जिट पोल के मुताबिक, क्योंकि उन्होंने उन्हीं दो चीजों पर काम किया। एक तो जो कोरोना से बिहारी मजदूर जब लौट कर आए तो उनको लगा कि यार घर से बाहर थे और हमें वहां से वापस आना पड़ा, तो इससे अच्छा अपने घर में ही काम मिल जाए। तो उन्होंने सबसे पहला दाव फेंका बेरोजगारों के लिए कि हम आपको आते ही पहला साइन करेंगे और 10 लाख नौकरी आपको देंगे। ये बहुत बड़ा उनका वादा था। और उनकी चुनावी सभा में आपने देखा होगा जो यूथ था वो बहुत ज्यादा था। मतलब आप 2015 में भी तेजस्वी यादव ने चुनाव लड़ा था, उनके भाई ने भी चुनाव लड़ा था, और वो दोनों जीते भी थे क्योंकि लालू यादव इतने समय तक बिहार में रहे हैं, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही हैं। तो वो चुनाव उन्होंने लालू यादव के फेस पर जीता था। लेकिन ये चुनाव अगर तेजस्वी यादव और महागठबंधन को बढ़त मिलती है तो निश्चित तौर पर, जैसे भार्गव भाई ने कहा, ये उनकी स्ट्रेटेजी है कि वो इतने टक्कर देते नजर आ रहे हैं, वरना 1 महीने पहले तक वो चुनाव की टक्कर में नहीं थे। ओके अच्छा, मैं आपसे तीनों से बात कर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछने की कोशिश करूंगा। शैलेंद्र जी, भार्गव जी और चैतन्य जी, तो शॉर्ट में उसका अच्छा से जवाब मिले तो अच्छी बात है, क्योंकि वो इसका एक आंकलन भी हो सकता है। चैतन्य जी, आपसे शुरुआत करता हूं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बीजेपी का क्या रोल लग रहा है आपको? क्योंकि नीतीश कुमार के साथ में वो चुनाव लड़े, लेकिन अकेले वो चुनाव नहीं लड़े, क्या वजह लग रही है आपको? बिल्कुल, जैसे भार्गव भाई ने भी एक शब्द कहा था कि बिहार में इस बिहार के चुनाव में इस बार जंगल राज की बहुत चर्चा हुई। जंगल राज जी चैतन्य जी, आपकी आवाज कट रही है। साल से तो बिहार में सुशासन बाबू, जिनको इन परिस्थितियों में हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी 3.5 साल से इसके साथ है, इस बार के शासनकाल में एनडीए में मिले। बीजेपी ये जानती है कि बिहार में जो जातिगत समीकरण है मतदान के, या जो वोटर्स का रुख है, वहां के स्थानीय जातियां जो रही हैं, एमवाय समीकरण हो जो लालू यादव लेके आए थे, मुस्लिम यादव समीकरण, महादलित का समीकरण हो, तो वो बिना जेडीयू के नीतीश कुमार के वहां अकेले दम पर अपनी सरकार नहीं बना सकते। बीजेपी ये बहुत अच्छे से जानती है। लेकिन सबसे बड़ी ताज्जुब की बात आप नोट करेंगे अगर, तो इस चुनाव में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया तो वो 15 साल पहले के जंगल राज का किया। 15 साल का जो नीतीश कुमार का कार्यकाल है उसका बहुत कम जिक्र किया। शिक्षा, स्वास्थ्य हो, बेरोजगार हो, जो तमाम कुपोषण, बिहार को बीमारू राज्य जो कहा गया, इन सारी तमाम बातों पर वजन ना देकर उस बात पर ज्यादा जोर दिया कि जंगल राज आपको अगर मिलेगा, अगर आप उनको जिताएंगे तो। सही बात है। शैलेंद्र जी, आपसे सीधा सवाल मेरा ये भी रहेगा, आपको पता है जैसे तेजस्वी यादव ने, जैसे भार्गव भाई ने बताया कि अच्छी सी स्ट्रेटेजी अपनाई, लेकिन उन्होंने जानबूझकर लालू प्रसाद यादव को प्रमोट नहीं किया, पहला सवाल। और दूसरा ये, बिहार के चुनाव से अमित शाह बाहर क्यों दिखे? क्या लग रहा है आपको? अमित शाह कहीं दिखे ही नहीं, उससे ज्यादा तो योगी आदित्यनाथ दिखे। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आप जो सवाल किए तेजस्वी का, लालू यादव का बाहर रखने का, तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि लालू यादव के नाम पर तेजस्वी जानते हैं कि अगर उनको माइलेज मिलता है तो लालू यादव के नाम पे ही मिलता है, और अगर उनमें निगेटिविटी अगर लोग जनता देखती है तो लालू यादव के नाम पे ही देखती है। उनके पिता का 2 फैक्टर है, और यही तेजस्वी यादव चाहते थे, और उनकी सोच थी कि अगर लालू प्रसाद अपने पिता को साइड करके और खुद अपना आगे आए तो आने वाले समय में शायद जनता उन पर भरोसा करे। ये तो हो गई पहली चीज। दूसरा हो गया कि बिहार में जो चुनाव हो रहा था, जो राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, केंद्र में अमित शाह हैं,
वो जो है एक भी बिहार में चुनावी सभाओं को नहीं संबोधित नहीं किए, शामिल नहीं हुए, जबकि वो बगल में बंगाल है, वहां पे लगातार उनकी हाँ सभाएं हो रही है। तो ये जी बहुत मायने रखता है। और दूसरी बात कि जिस तरीके से एनडीए को अपना प्रस्तुतिकरण देना चाहिए था, क्योंकि वो नहीं देखिए किया। लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव के वोटर का टेम्परामेंट बिल्कुल अलग होता है। जी जी एनडीए को एक ये विश्वास था कि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आ जाने से जो है वोट जो है उनके पक्ष में आ जाएगा। आ जाएंगे, सही लेकिन बात है। यहाँ के जो नेता, स्थानीय नेता हैं, वो ये नहीं समझे कि राष्ट्रवाद और राज्यवाद में बहुत अंतर होता है। जब लोकसभा की चुनाव आती है तो वहाँ राष्ट्रीय स्तर का जो है मेंटेलिटी से लोग वोटिंग करते हैं, और यहाँ बिल्कुल राज्य सही। स्तरीय है। तो यहाँ पर जो है एनडीए कहीं ना कहीं चूक की है। दूसरी तरफ प्रवासी मजदूरों का है, बाढ़ हाँ ये है, चमकी बुखार जी है, तमाम जो चीजें हैं, तो ओके नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इन मुद्दों पर जो है ओके हल्के पड़े हैं। और सही यही बात है वजह है। देखिए आप देखिएगा कि जब चुनाव की शुरुआत हुई थी, आगाज हुआ था चुनाव की तिथियों का, तो उस वक्त मुद्दा कुछ और था, और जी धीरे धीरे मुद्दा कुछ और हो गया। और आपको बता दें कि अब जो है चुनाव संपन्न हो चुका है, तो अब वहां पर जो है जातीय आधारित जो हाँ है, यस वहां पे जो मतदान केंद्र पे जब लोग जाते हैं तो वो भूल जाते हैं कि क्या विकास है, क्या स्वास्थ्य है, तमाम चीजों को अच्छा वहां जातीय ओके आधार पर वोटिंग होता है। और हाँ आज का जो वोटिंग हुआ उसमें भी जो है कहीं ना कहीं महागठबंधन को, क्योंकि नीतीश कुमार इमोशनल, जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं इमोशनल, उन्होंने बिल्कुल एक बिल्कुल अपने राजनीति का आखिरी तर्कस वो उन्होंने छोड़ा है कि शायद इससे कहीं ना कहीं जनता प्रभावित हो। और यही वजह है कि उन्होंने कहा कि अब वो उनका आखिरी नहीं नहीं राजनीतिक शैलेंद्र जी आपने बोला इसलिए फिर से दूसरा सवाल पूछ लेता हूँ। आपने जो बोला इमोशनल दाव, जैसे भार्गव भाई ने भी उसका जिक्र किया था, लेकिन नीतीश कुमार के मंत्री ने बाद में शाम को ये बोला था, उनका मूल्यांकन किया था, बोले इनका जो मीडिया ने अर्थघटन किया वो गलत किया है, नजरिया गलत था इनका। उन्होंने बोला कि मैं आखिरी चुनाव मेरा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो राजकीय संन्यास ले रहे हैं। उनके सहयोगी जो भी बोले, लेकिन ये तो साफ तौर पे है, मीडिया अच्छा वही दिखाती है, वही बोलती है जो लोग हाँ बोलते हैं, फिर हाँ शब्दों का अंतर होता है। उन्होंने कहा कि उनका आखिरी चुनाव है, तो आखिरी चुनाव का मतलब है कि वो है राजनीतिक, सक्रिय राजनीति से दूर होंगे। अब वो जी जी राष्ट्रीय राजनीति में जाते हैं, कहाँ जाते हैं, किंग अच्छा मेकर ओके बनते हैं, ये तो ठीक है बात की बात है। ओके लेकिन अब फिलहाल वो यस इमोशनल, यस हाँ जो इमोशनली जो उन्होंने लोगों से अपील की, हम्म क्योंकि देखिए एक तरफ नरेंद्र मोदी जो है एक चिट्ठी के जरिए कहते हैं कि हाँ नीतीश कुमार को एक वोट, एक बार जरूर मौका दीजिए इस बार, और हाँ उनको मुख्यमंत्री बिहार का बनाइए। जी तो देखिए यहाँ पे कंट्रोवर्सी बहुत है। योगी आदित्यनाथ जो हैं फायर हाँ ब्रिगेड कहलाते हैं, हिंदुत्व के नेता कहलाते हैं। जब हाँ वो यस एक ओके चुनावी सभा को संबोधित करके बस उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो भी एनडीए हम्म की सरकार बनेगी तो घुसपैठिए उनको बाहर का बस रास्ता इसी पर मुक्त भार्गव भाई किया जाए। आपका बिल्कुल। आपके लिए सवाल शैलेंद्र जी ने जहां खत्म किया वहीं पे दूसरा सवाल मेरा वैसे भी था। सी डबल और एनआरसी के लिए योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि हम घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, तुरंत ही उसी दिन दूसरे प्रचार में बोलते हैं नीतीश कुमार कि हम किसी की हिम्मत नहीं है बिहार से या देश में से किसी को बाहर निकालने की, किसी को बाहर निकाला नहीं जाएगा। एक सवाल भार्गव भाई, दूसरा सवाल, बीजेपी की स्ट्रेटेजी बिहार में क्या लग रही है? नीतीश कुमार को जानबूझकर दबाने की कोशिश बीजेपी खुद कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, अगर नीतीश कुमार को दबाने की कोशिश की होती तो ये पिछले कई समय से उनके साथ गठबंधन नहीं किया होता। ओके उनको बीजेपी को नीतीश कुमार की जरूरत है, जी क्योंकि एक चेहरा एक अलग प्रकार का है। और आप सभी जानते हैं कि वो पहले नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के काफी बड़े विरोधी रहे हैं, और नीतीश कुमार विरोधी रहे हैं। और नंबर 2 कि बिहार के अंदर बाहर से आने वाले लोगों को अगर खदेड़ने की बात है, तो वो काफी हद तक अब इलेक्शन में नुकसान कर सकती है। मैं बदेश में मैं दोनों अपने मित्रों से ये एक चीज पे प्रकाश डलवाना चाहूंगा कि वहां पे कुर्मी यादवों का कितना अहम रोल रहा है इस चुनाव के अंदर, क्योंकि वहां पे कुर्मी यादवों का इस बार पॉलिटिक्स के अंदर बड़ा काफी प्रभाव रहा है, जहां तक मैंने यहाँ से अपने जो आकलन किया है उसके अंदर। लेकिन वो ग्राउंड रिपोर्ट और ग्राउंड हकीकत वही, ग्राउंड जीरो से वही बता सकते हैं जो। जी ओके शैलेंद्र जी, जैसे भार्गव भाई ने पूछा तो वो भी आप जवाब दे दीजिए। वहां पे कुर्मी या दूसरे जो ब्राह्मण की बात की जा रही है, तो ये सारे जो जातिगत समीकरण है, आपको लग रहा है कि मुस्लिम, यादव और दलित ये जो निर्णायक वोट बैंक है उसकी नहीं जगह नहीं, पर कुर्मी यादव बहुत महत्वपूर्ण है इसके नहीं, अंदर। मैं जोड़े बीचों सवाल भी पूछ ली तो भार्गव भाई, तो शैलेंद्र जी उसके साथ में सवाल मेरा ये है कि क्या लगता है कि जातिगत समीकरण इफेक्टिव रहे, या फिर खाली कोरोना की वजह से जो बेरोजगारी, रोजी रोटी की जो बात थी वो ज्यादा इफेक्ट रही? क्या लग रहा है जातिगत समीकरण इस बार क्या? देखिए बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव का अपना अपना जो है एक वोट बैंक है।
और जी। भार्गव साहब ने सही कहा, नीतीश कुमार चूंकि कुर्मी जाति से आते हैं तो उनका हाँ। कुर्मी नालंदा जो इलाका है हाँ उनका बिल्कुल। वहां पे प्रभाव है। और लालू यादव का जो है वो उत्तरी बिहार जो है यादव बहुल क्षेत्र है, वहां पर प्रभाव है। और यही वजह है कि राघोपुर से हाँ तेजस्वी यस। यादव जो है चुनाव लड़ रहे हैं। जी जी जी। तो इन्होंने कहा ये जातीय जो हम्म। राजनीति है यहाँ पर बिहार में काफी प्रभावी होता है और ओके। जातीय स्तर पे ही वोटिंग हुआ है। आप गौर कीजिएगा कि जितने भी कैंडिडेट खड़ा किए गए हैं तो हम्म। उस इलाके के ही जातियों को, कोई बाहर के दूसरी जातियों को नहीं खड़ा किया गया है। तो जी। जातीय यहाँ सबसे प्रमुखता है। और उसके बाद कोरोना और ये तमाम जो विकास, नौकरी, कोरोना, ये तमाम चीजें जो हैं वो हाँ। एक मुद्दा हो सकता है एक दूसरे पे जी। आरोप प्रत्यारोप का, यस। लेकिन जमीनी हकीकत में जब हम्म। वोटिंग होता है, मतदाता है, हम हम्म। तो इतने पढ़े पढ़े लोगों को देखे हैं कि वो हम्म। जाते हैं जब वोटिंग पे तो वो कहते हैं कि जब हम वहां पहुंचते हैं तो हमको कुछ नहीं दिखला देता है, दिखलाई देता है तो सिर्फ कि मेरी जाति का कौन है और उसी पे मेरा अच्छा। बटन दबता है। तो आप सही समझ बात है। सकते हैं कि जब बुद्धिजीवी लोग हम्म। जब इस तरीके का सोच रखते हैं तो ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा होगा। ज्यादा एग्रेसिव वोटिंग होता है। और जी। वहां पर जो है दलित हैं, तो महादलित इसके हैं, मुताबिक अल्पसंख्यक शैलेंद्र जी, अगर आपके इक्वेशन के मुताबिक बात मानी जाए तो क्या लग रहा है इसका आपको नीतीश कुमार एनडीए को फायदा मिल सकता है, ऐसा लग रहा है आपको क्या? देखिए नीतीश कुमार को तो नुकसान हो रहा है ये तो निश्चित है, लेकिन ओके। बीजेपी को कुछ फायदा फायदा हो रहा है। नजर आ रहा है। वजह यह है कि चिराग पासवान जो एलजेपी है वो हाँ नीतीश यस यस। कुमार को नुकसान, जिस पहुंच सोच रही से है। चिराग पासवान जो विरोध किए थे, यस यस। बगावत किए थे, तो निश्चित तौर पे चिराग हम्म। पासवान देखिए यहाँ पर जो एक तीर से दो निशाना करना चाहते थे, वो चाहते थे कि हम्म। अगर हम्म। उनका जो है विरोध अगर सक्सेस हो गया तो केंद्र में उनकी पूंछ बढ़ेगी और सही बात आगे है। जो उनका चूंकि उम्र कम है, ओके राजनीतिक ठीक है। जो करियर है लंबा है, तो वो इसमें बिहार की राजनीति में सक्रिय ओके भूमिका निभा सकते हैं। और ठीक है। यही वजह है कि वो लगातार हाँ अगर यस। हिट भी किए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, क्योंकि ठीक बिहार है। में अभी ओके। सबसे बड़े नेता हैं तो नीतीश कुमार हैं। जी बीजेपी जी। का कोई भी लीडरान जो है यस। बिहार में उस तरीके का व्यक्तित्व ओके। वो नहीं है। ये वो चैतन्य जी, सिर्फ मेरा सवाल सीधा आपसे ये भी है शैलेंद्र जी, ठीक है, बैक सीट पे बीजेपी बिहार में देखने को मिली है, क्या फ्रंट सीट पे आने की कोशिश लग रही है बीजेपी की, पहली बात, और उसके साथ एलजेपी की भी आपको रोल क्या लग रहा है, क्योंकि एलजेपी जो है बीजेपी की बी टीम माना जा रहा है? देखिए बिल्कुल। बिल्कुल चैतन्य जी बोलेंगे, जेडी हाँ। बिल्कुल जेडीयू के कई नेताओं ने चुनावी सभाओं के दौरान ऑफ द कैमरा या कई बार ऐसे बयान भी दिए हैं कि एलजेपी को बीजेपी का समर्थन है और उनको वोट वोट काटने के लिए हाँ यस। उतारा गया है, क्योंकि जो वोट कटने हैं वो सैलन जी ने बहुत सही आकलन किया है कि वो नुकसान होना है तो नीतीश कुमार को ही होना है, क्योंकि एक जो फिक्स वोट बैंक है बिहार में वो यादवों का और मुसलमान का जो है सवर्ण जाति का जो वोट बैंक बंधा हुआ है हाँ वो यस यस। ज्यादातर बीजेपी के पास ही है। दलित दलित का वोट बैंक है जो एलजेपी काट सकती है, जो नीतीश कुमार को जाता था। जी। लेकिन तो जो नुकसान होगा वो एलजेपी ज्यादा सीटों पर कोई प्रभावी ढंग से कोई असर तो नहीं छोड़ पाएगी, लेकिन वोट जरूर काटेगी और वो वोट सीधा ठीक है। नुकसान होगा तो नीतीश कुमार का होगा। ओके इसलिए इसमें सीधा फायदा अगर इस चुनाव में उभर ओके। कर आएगा तो बीजेपी अपनी कई सीटों पर बढ़त ला सकती है यस। जेडीयू के तो मुकाबले। उसके उसके हिसाब से चैतन्य जी, शॉर्ट में तीनों से पूछ रहा हूँ, क्या लग रहा है एनडीए या महागठबंधन बिहार में आपके हिसाब से, चैतन्य जी? देखिए हमें लगता है हमें 10 तारीख का इंतजार करना फिर पड़ेगा भी जब चुनावी गुंजाइश क्या परिणाम लग रही है? आएंगे। लेकिन फिलहाल जिस जिस तरीके से एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें देख के तो हाँ। लग रहा है कि महागठबंधन को बढ़त है, स्पष्ट ओके। बहुमत किसी को नहीं, भार्गव क्योंकि भाई। आप देखें तो जी। हाँ यस, भार्गव भाई, गुंजाइश आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो ये है कि मुझे हंग असेंबली ओके। दिख रही है हाँ हाँ यस। यहाँ से। और दूसरी चीज ये है कि गोवा रिपीट हो सकता है। अच्छा ओके। ये भी आप समझ ये सकते बहुत हैं बड़ा संकेत कि है, यस जो यस बिल्कुल। अदर्स और छोटे हैं तो वो भी रिपीट हो हाँ, सकता है। बस तो ये इससे मुझे ज्यादा बहुत मैं ज्यादा कुछ नहीं इफेक्टिव कर लग रहा है, पाऊंगा। क्योंकि ये बहुत चर्चा हो रही है राजकीय पंडितों में। शैलेंद्र जी, आपके मुताबिक आपकी गुंजाइश क्या लग रही है, एनडीए महागठबंधन? देखिए बिहार में जो चुनाव जो 10 तारीख को परिणाम आएंगे उसके बाद और कई परिणाम चौंकने वाले आएंगे और यस यस। कई राजनीतिक उठापटक और कई जो है हाँ चौंकाने वाले परिणाम होंगे। लेकिन करना होगा 10 तारीख का इंतजार, क्योंकि हाँ। उसके बाद बिहार की राजनीति में देखना होगा एक बहुत दिलचस्प, और फिर हम लोग बात ओके करने के लिए मौजूद होंगे। ठीक है। ओके, आपकी बात सही है, लेकिन देखना रहेगा बिहार में कौन बिहार में रहता है और कौन बाहर निकलता है, ये बहुत बड़ी चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी। દર્શક મિત્રો, આ ચર્ચા નહીં સમાપ્ત કરી, આ ચર્ચામાં હજી પણ ઘણા બધા સવાલો રહી ચૂક્યા છે, કારણ કે ઘણી મોટો વિષય બિહારનો છે કે જેની વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં નવા નવા ઇક્વેશન જોવા મળી રહ્યા છે, તો પરિણામ પણ એવા ચોંકાવનારા જોવા મળી શકે એવું રાજકીય પંડિતો અને પત્રકારો પણ કહી રહ્યા છે। આ ચર્ચા નહીં સમાપ્ત કરી, આ ચર્ચામાં આપ ત્રણેય ભાગ લીધો તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર। ફરી મળીશું દર્શક મિત્રો લોકમંચમાં એક નવા વિષય સાથે, ત્યાં સુધી રજા આપશો, નમસ્કાર।